2, 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہے۔ آج بولو افضل آباد کی ٹیم ایک مشہور و معروف ایجوکیشنسٹ جناب عمیر اسلم فاروقی کے پاس ہے، اور آئیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آج جناب ہم ان سے ایجوکیشن کے بارے میں ٹپس لیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور کیسے وہ ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ اچھا سر، اس میں کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجھے شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے قریباً 18 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اس تمام دورانیے کے اندر جو چیز محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ والدین جب بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام طلباء و طالبات کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ اس آس امید پہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اس ادارے میں یا فلاں ٹیچر کے پاس جو بچہ جائے گا تو یہ ٹیچر یا یہ ادارہ اس کو پائلٹ بنا سکتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، اس کو مختلف شعبوں کے اندر اتنا سکلفل بنا دے گا کہ یہ ان مقامات پہ جا کے ملک کی بھی خدمت کرے گا اور ہماری کمائی کے لیے یا اپنی کمائی کے لیے بہترین وسیلہ بھی بنے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماں باپ بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں یا اداروں میں بھیجتے ہیں وہ بڑی آس اور امید کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ تو استاد کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان ماں باپ کے خوابوں کو ایک نیا پیغام دینا، ایک نئی جہت دینا، ایک نئی منزل دینا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں یا پھر جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو کولو کا بیل بنا رہے ہیں، رٹی رٹائی چیزیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں اور اس سے زیادہ ان کی استاد کار بڑھ نہیں سکتی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی استاد جب پڑھائے تو جب وہ انگریزی کا ایک ورڈ اے پڑھائے تو اس طالب علم کو اتنی جستجو دے دے کہ اسے بی کی خواہش خود ہو، بی کو سیکھنے کی خواہش خود ہو۔ لیکن ہم اس طرح کے تعلیمی ماحول کو کبھی بھی پروان نہیں چڑھا سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ہمارے نظام تعلیم میں ایسے نقائص ہیں اور والدین کی اور اساتذہ کی خواہشات ہیں جو صرف اور صرف مارکس کو امپروو کرنا ہے، A+ گریڈ لانا ہے، 95+ مارکس لینے ہیں۔ جب بچے کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ تم اتنے مارکس لاؤ تو وہ رٹے کی دوڑ میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اساتذہ اپنا رزلٹ بنانا چاہتے ہیں، ادارے اپنا رزلٹ امپروو کرنا چاہتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ جو ہیں یا ادارے جو ہیں وہ فلیکس کے لیے کام کرتے ہیں، ایک پینا فلیکس ایسی بن جائے جس کے اوپر وہ لکھ سکے کہ یہ شہر کا ٹاپر بچہ ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ استاد کی جو ذمہ داری اس معاشرے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ ان ماں باپ کی خواہشات کو سمجھے کہ وہ اپنے طالب علم، وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کیا بنانا چاہتے ہیں، پہلے وہ اس خواہش کو سمجھے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ جس مقام پہ کھڑا ہے یہ ایک مقدس مقام ہے، یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے اور وہ ہر طالب علم کو سکھائے، پڑھائے تاکہ اس کی زندگی میں بہتری آئے، اس کو ایک کریاسٹی دے، اس کو ایک جستجو دے، اس کو اس طرح کی خواہش پیدا کرے کہ اگر وہ کسی بھی سکل کا حامل طالب علم ہے تو وہ مزید آگے پڑھنا شروع کر دے، اپنے معیارات کو بہتر کرنا شروع کر دے، نہ کہ 4 سوالوں کے جواب میں الجھ کے رہ جائے۔ جی سر۔ آپ نے ایک لمبا عرصہ زندگی کا دیا ہے، حافظ آباد کے بچوں کے والدین کی خدمت کی ہے، تو میں سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پڑھے لکھے شخص کو ایک اچھا ٹیچر بننے میں کن کن
मराहिल से गुजरना पड़ता है, या ऐसी कौन सी क्वालिटीज पैदा करनी पड़ती है कि एक पढ़ा लिखा शख्स एक मुअल्लिम बन जाए? सर, यहाँ पे मैं एक बड़ी सख्त बात से इस बात का आगाज करूंगा, वो ये कि वो लोग जो रुपयों पैसों के हसूल के लिए इस मुकद्दस पेशे को चुनते हैं, वो इसमें हरगिज ना आए। ये वही लोग इस पेशे को चुने जिनको शौक है पढ़ाने का। शौक के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं। मैंने अपने तदरीस के इस तमाम दुरानिये के अंदर जो देखा है कि जो असातिज़ा शौक से, मोहब्बत से और मेहनत से पढ़ाते हैं, तालिब इल्म उनकी इज्जत करता है, तालिब इल्म उनसे प्यार करता है, और उनके पढ़ाए हुए तालिब इल्म जिंदगी में भी बेहतरीन मकाम पर पहुंचते हैं और अच्छे शोबों की तरफ भी जाते हैं और अच्छी मनाजिल का हसूल भी करते हैं। तो सिर्फ गुजारिश इतनी है कि इस प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ वही तालिब इल्म वही असातिज़ा आए जो शौक से पढ़ाना चाहते हैं, जो मुआशी मजबूरी के तहत नहीं पढ़ाना चाहते, जिनके पास जो फारिग हैं, जिनके पास कोई और जॉब नहीं है, तो वो क्या करें? उनके पास हाफिजाबाद में जो एक आखिरी ऑप्शन बचता है वो टीचिंग का ऑप्शन होता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि वो इस पेशे को चुने। सिर्फ और सिर्फ वही असातिज़ा या वही लोग इस पेशे में आए जो बड़ी शौक, लगन और मोहब्बत के साथ इस पेशे को आगे लेके चले। इंतहाई खूबसूरत पैगाम सर दे रहे थे कि वो शख्स टीचिंग करे जो बाई चांस टीचर ना बन जाए, बल्कि बाई चॉइस टीचर आए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मुतल्लिम के बारे में बात करते हैं, तालिब इल्म के बारे में, कि तालिब इल्म को नफ्सियात को समझते हुए टीचर को किस तरह कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि वो बच्चे की ज़रूरियात को समझे और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली अपनाए। सर, पहली बात तो ये है कि हमारा जो मुआशरा है उसमें ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो तालिब इल्म को सख्ती से, मार से पढ़ाना चाहते। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी उस्ताद मार के जरिए तालिब इल्म को पढ़ा सकता है। अगले दिन भी शायद आपसे बात हो रही थी, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि हमारे एक बड़े काबिल एहतराम उस्ताद हैं, उनसे कुछ टीचिंग की टिप्स सीखने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि उमैर, अगर कोई तालिब इल्म को तुम मारना चाहते हो, किसी भी तालिब इल्म को मारना चाहते हो, और वो आगे हाथ करता है और तुम स्टिक उठाते हो और वो हाथ पीछे कर लेता है, तो आप उसे ना मारें, क्योंकि डराना मकसूद था, मारना मकसद नहीं था। तो उसने जो हाथ पीछे किया, इसका मतलब ये है कि वो डर गया। उनकी दोनों बातों का मकसद ये था कि जिसको डरा दिया उसे मारने की जरूरत नहीं है, और जो डरता ही नहीं है उसको भी मारने की जरूरत हरगिज नहीं है। तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए। आपका जो पिछला सवाल था, उसी सवाल का थोड़ा सा इसमें भी जवाब शामिल हो जाता है कि वो असातिज़ा जो बाअमरे मजबूरी टीचिंग करते हैं, वो अपनी घरेलू परेशानियां स्कूल कॉलेज में ले आते हैं, वो अपने तबीयत की नासाजगारी भी साथ ले आते हैं, वो मुआशी बदहाली को भी अपने ज़हन में रखते हैं, और वो अक्सर कोफ्त का शिकार होते हैं और बच्चों को जोदो कोब का निशाना बनाते हैं। तो जो भी टीचर शौक से पढ़ाएगा, वो इन सारी चीजों से बालातर होके पढ़ाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत से पढ़ा रहा है, वो शौक से पढ़ा रहा है। उसकी अगर कोई परेशानी है भी तो वो स्कूल के या कॉलेज के दरवाजे के बाहर छोड़ के आएगा, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाएगा, क्योंकि उसे शौक है। जी सर। अभी इस जमाने में कुछ लोग हैं जो कानों में रस खोल सकते हैं, जो उर्दू बोल सकते हैं। सर जो हैं उर्दू के टीचर हैं, तो मैं सर से कोई खूबसूरत सा इनकी पसंद का एक शेर सुनना चाहता हूँ, ताकि आप भी महजूज हों और मैं भी महजूज हूँ। जी, आपने जिस तरह बड़ी प्यारी बात की है, आप ही के लिए इस शौक में पूछी हैं मैंने हजारों बातें, इस शौक में पूछी हैं मैंने हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। अहमद नदीम कासमी का ये शेर है। तो असल में
सारा हुस्न ये है कि मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयान तक देखूं। आपका बयान अच्छा है, इस वजह से आपकी नजर ये शेर किया। अच्छा, एक सर मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे हाफिजाबाद के लिए जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, खुदा करे मेरा हाफिजाबाद पढ़े, मेरा हाफिजाबाद आगे बढ़े, उनके लिए कोई पैगाम। सर मेरा तमाम तुलबा और तालिबात के लिए यही मैसेज होगा कि जिस तरीके से मैंने ये शुरू में अर्ज की थी बात कि जो माँ बाप अपने तालिब इल्म को पढ़ाना चाहते हैं, उस्ताद को ये देखना चाहिए कि उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं। वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, फौज में भेजना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले ये रियलाइजेशन तालिब इल्म को खुद होनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे क्या डिमांड करते हैं। अब इस बात को यूं समझ लीजिए कि एक वालिद या वालिदा अपने बच्चे को कहता है कि बेटा आप डॉक्टरी का शोबा इख्तियार करो, आप इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, तो वो उसका ख्वाब होता है कि मेरा बेटा इस शोबे में जाए। और मैं ये बात कहता हूँ, और यकीनन ये बात आपको पसंद आई होगी, आएगी, कि हम जो वालिदैन हैं, चूंकि मैं भी वालिद हूँ, हम अपने ख्वाब अपने बच्चों में देखते हैं। जो चीजें मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सका, वो ख्वाब मैं अपने बच्चे में देखता हूँ। मसलन मैं फौज में जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका, मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सका, तो अब वो ख्वाब मैं अपने बच्चे की तरफ देखना शुरू हो गया कि काश ऐसा हो कि कुछ ऐसे असबाब अल्लाह पैदा कर दे कि वो भी फौज की तरफ चला जाए या इस शोबे से मुंसलिक हो। तो बच्चों को सबसे पहले ये चीज समझनी है कि उनके वालिदैन उनके लिए क्या सोचते हैं। जब तालिब इल्म ये बात समझ लेगा कि उनके वालिदैन की उनसे मुतल्लिका ख्वाहिशात क्या है, तो वो भी आगे बढ़ने के लिए, बल्कि मैं तो इसमें बात में ये इजाफा कर सकता हूँ कि जब उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बन के एक अच्छे मकाम पे खुद पहुंचेगा, उसका अपना ख्वाब पूरा होगा और इसी बहाने अपने माँ बाप का भी ख्वाब पूरा कर लेगा। तो एक जरिए से दो ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और माँ बाप ही की पसंद को अपनी पसंद बनाए, माँ बाप ही की चॉइस को अपनी चॉइस बनाए, और एक दफा माँ बाप को बेहतरीन तरीके से कोशिश करके दिखा दें जो वो चाहते हैं। जब आप बेहतरीन तरीके से कोशिश कर लें और वो खुद मान लें कि हाँ तुमने मेरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी कोशिश की है, फिर आप उसमें नाकाम हो जाएं, तो फिर आप अपनी ख्वाहिश अपने माँ बाप के सामने जरूर रख दें कि आपके लिए ही मैंने सब कुछ किया है, अब मैं ये चाहता हूं कि इस फील्ड में चला जाऊं। तो फिर उनको कभी गिला नहीं होगा। और चूंकि आपने माँ बाप का हुक्म मानना होगा, तो या तो आपको पहली दफा ही मंजिल मिल जाएगी, या फिर जिस साइड पे आप जाएंगे उनकी दुआएं आपके साथ होंगी, यकीनन यकीनन फिर मंजिल आपके कदम चूमेगी। उस्ताद की अजमत को तराजू में मत तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। सर से और मजीद टीचिंग टिप्स लेने के लिए हम इसी तरह दोबारा इनसे मिलेंगे। आज के सेशन के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया कीमती शुक्रिया वक्त के लिए। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।